Hello and welcome to Manika IAS. Today we are going to see a very important topic that made this presence in both the newspaper, both Hindu and the Indian Express. And the news says that NGT allows the Great Nicobar project. Okay. So we are going to take this article in 360 degree and actually analyze the various detail that is there in this news article. So you can see NGT clears the Great Nicobar project, citing strategic role and no ground to interfere. ठीक है? NGT gives clearance to Great Nicobar project. This is from the Hindu. This article is from the Hindu, and this is from Indian Express. ठीक है? So the various things that we are going to see in this article is NGT allows Great Nicobar project. The context. What is the context on the which NGT has given its verdict? What are the various details related to this case? What is IC rules? This is Island Coastal Regulation Zone rules 2019. Then we are going to see the related map work, Andaman and Nicobar Islands mapping. What is NGT? जैसे ये verdict दिया गया है by NGT, we are going to see what is NGT and how it is kind of able to give this verdict and the various related species. ठीक है, अब नेशनल पार्क है, आपको पता ही, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दिया हुआ है. निकोबार इज एन आइलैंड, द वेरियस स्पीसीज आर देयर, सो हाउ दो स्पीसीज एंड द पीपल दोज हु आर स्टेइंग इन दैट आइलैंड will be impacted. So this article is very important. It will also lay a foundation in order to understand how do you go about reading a newspaper through multiple dimensions. Okay, so let's start. आपको ये मैंने टॉपिक दिखाई दिया है, ठीक है. So the context related to this article is NGT has refused to interfere the environmental and forest clearance granted to the project of 80 to 90,000 crore, around 80 to 90,000 crore ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में लगेगा. ठीक है. And what is this project entitled? We will see in detail. ठीक है. The permission has been granted to this Great Nicobar project by NGT on simply on one bare, like most important parameter, which is your island development, and it is in the Bay of Bengal. ठीक है. बहुत strategic location है in order to counter international relations, defense और internal security वगैरह reasons के लिए basically इस project को clearance दिया है. Although we are paying a price in terms of environmental degradation थोड़ा बहुत, but eventually this project will benefit the national security and sovereignty of India to a great extent, mostly in order to cater to the China. ठीक है. Why challenged? Why it has been challenged? Regulatory zone has been challenged. This regulatory zone जो है ICRZ है, ठीक है, इसके नोटिफिकेशन में है CRZ 1A and 1B. ठीक है. ICRZ क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, इट्स आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन. ठीक है. इसके अंतर्गत देयर इज CRZ 1A एंड 1B. ये दो ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको उस एरिया में डेवलपमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर सम रीजंस, फॉर एग्जांपल एटॉमिक पावर, और जैसे मैंने पहले बताया आपको नेशनल सिक्योरिटी वगैरह का. ठीक है. अब हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में जो दो पैरामीटर हैं, जो बहुत मेजर पैरामीटर हैं इस प्रोजेक्ट के, is the very first thing. This project has four main components. ठीक है. What are the four main components? This project has, पहला है, they are going to have a port. ठीक है. दूसरा एयरपोर्ट. ठीक है. तो मोस्टली यू सी द पोर्ट इज एंड द एयरपोर्ट इज बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी. वी नीड कनेक्टिविटी. ठीक है. कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे पोर्ट और एयरपोर्ट चाहिए तो आपको एक पावर जनरेशन के लिए भी चाहिए. सो दिस अ पावर जनरेशन प्लांट ऑल्सो. अब पोर्ट है, एयरपोर्ट है, पावर है, तो दे यू नीड अ टाउनशिप ऑल्सो वेयर पीपल विल स्टे. ठीक है. तो टाउनशिप इज ऑल्सो प्लान. सो इस प्रोजेक्ट के फोर मेजर कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. हम एक बार फिर से देखेंगे. फर्स्ट इज पोर्ट, second is airport, will have both civil and military airport, third is your power plant, and the fourth is integrated township. So I hope you have a basic idea that इस प्रोजेक्ट में है क्या क्या. प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अराउंड 80 to 90,000 करोड़. ठीक है. विल बी बिल्ट इन ग्रेट निकोबार. सो एज ऑफ नाउ ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी what is about the geography and ecology of Great Nicobar. ठीक है. मैपिंग भी देखेंगे. फर्स्टली ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड. ठीक है. और अराउंड 1 मिलियन ट्रीज, मतलब अराउंड 10 लाख. ठीक है. 1 मिलियन मीन्स 10 लाख ट्रीज विल बी कट. ठीक है. प्रोटेक्टेड एरियाज नियर बाई आर गैलेथिया नेशनल पार्क. दिस कैन डायरेक्टली कम इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. लेदरबैक टर्टल्स, हम इसके बारे में भी देखेंगे. IUCN कैटेगरी इसकी क्या है. ठीक है. इवेंचुअली विल सी. कैम्बेल बे नेशनल पार्क. तो ये दो नेशनल पार्क है. अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग और लेट्स से चूज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन लोकेटेड इन विच रीजन. ठीक है. तो आप दे सकते हो दैट निकोबार में आपका गैलेथिया नेशनल पार्क एंड कैम्बेल नेशनल पार्क. along with that you have great nicobar biosphere reserve as well. ठीक है.
So these are the projects that is there. Now we have another point. NGT has given the balanced approach doctrine. What is this balanced approach doctrine? ये कहती है that in order to cater to the demands of environment, we cannot let the development go haywire. Environment and development both has to be taken into consideration. ठीक है, हम किसी भी एक प्रोविजन को कभी भी डोमिनेट लेके नहीं चल सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सिर्फ इन्वायरमेंट फोकस किया तो डेवलपमेंट विल टेक अ बैक सीट. सिर्फ डेवलपमेंट टेक अगर ध्यान रखा हमने तो इन्वायरमेंट विल टेक अ बैक सीट. सो अ मिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंट एंड योर डेवलपमेंट हैज टू टेक प्लेस. तो ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जो है आपका बोथ हैज टू बी इन यूनिसन सो दैट एक इंक्लूसिव ग्रोथ which entails that peoples are also protected, the environment is also protected and the डेवलपमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम. सो इस तरीका से एक प्रोविजन दिया गया है बाय एनजीटी. ठीक है, स्टेटिंग दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नॉर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी कैन बी इग्नोर्ड. देखो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को इग्नोर नहीं करना है बट हमें डेवलपमेंटल को प्रमोट करना है. प्रेसिडेंस क्या है? दिस ऑर्डर इज लाइकली टू सर्व एज अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स. इट एस्टेब्लिश दैट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो इंडिया की उसको सेफगार्ड की जाएगी. ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है जो हमने इन्वायरमेंट का देखा है? मैसिव डिफॉरेस्टेशन. फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट है. अगर आप देखोगे इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, इफ यू एक्चुअली सी द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इंडियन ज्योग्राफी में लेट्स से दिस इज इंडिया एंड दिस इज वेस्टर्न घाट्स में आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो यू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड इन आइलैंड्स फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यू हैव. इस तरीके से एक मैप भी बना सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर इन योर मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, सो आई होप यू गेट एन आइडिया दैट इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है. ठीक है, so this will give you some idea and more details on this we have our booklet and also we discuss in our mentoring classes. तो बैलेंस अप्रोच हमें डॉक्ट्रिन लेके चलना है और आर्ग्यूमेंट फॉर इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या है? मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रही है. ट्राइबल राइट्स अगेन इसका लिंक आप केस स्टडी से भी जोड़ सकते हो. व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ केस स्टडी इन योर एथिक्स पेपर 4, आप इन्वायरमेंट को केटर कर रहे हो, आप पीपल को केटर कर रहे हो. ठीक है, कोस्टल इंटीग्रिटी जो है उसको, जैसे कि इरोजन हो सकता है, शोर लाइन का चेंजेस हो सकता है ड्यू टू डेवलपमेंटल इश्यूज. इस चीज को एक स्टेक होल्डर अप्रोच बोलते हैं. वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट शेयर होल्डर बट स्टेक होल्डर अप्रोच इज ऑल्सो अ थिंग. अगर कोई भी इंपैक्ट हो रहा है, कोई भी एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट, हाउ द पीपल आर इंपैक्टेड बाय दैट. सो दिस गिव्स यू अ स्टेक होल्डर अप्रोच. ठीक है, सो यहाँ पे एक टेबल भी बनाया गया विच विल गिव यू अ सर्टेन आइडिया हाउ द डेवलपमेंट आर्ग्यूमेंट इज बीइंग पुट फॉरवर्ड एंड हाउ इन्वायरमेंटल आर्ग्यूमेंट इज पुट फॉरवर्ड. ठीक है, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी कैसे है? क्योंकि ये जो एरिया है योर ग्रेट निकोबार इज वेरी नियर टू अ चोक पॉइंट विच इज नोन एज द मलाक्का स्ट्रेट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड is being taken from this area. Malacca Strait is very important and it has been largely done to counter China's influence in the Indian Ocean, जो अभी हमने डिस्कस किया है स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी इंश्योर करेगी. ठीक है, द इकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया, इकोलॉजिकल रिवर्सिबिलिटी, 1 मिलियन ट्रीज को काटा जाएगा तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? ठीक है, दीज आर जस्ट प्रोस एंड कॉन्स हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट इन आंसर. जो स्पीसीज है फॉर एग्जांपल लेदरबैक टर्टल है, ठीक है, मेगापॉड है, निकोबार मेगापॉड है, हाउ दीज स्पीसीज आर इंपैक्टेड. जैसे हमने ट्राइबल्स के बारे में बात किया है, शोम्पेन्स है, शोम्पेन्स इज अ ट्राइब that stays there. ठीक है, अंडमानीज एंड ऑल द ट्राइब्स आर देयर which also they are not just STs but they are PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. ठीक है, यूपीएससी में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया PVTs. हाउ मेनी PVTGs आर देयर इन इंडिया? सो जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया, देयर आर 75 PVTGs इन इंडिया. तो जब भी आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, हाउ दोज आर्टिकल इज रिलेटेड टू मल्टीपल डायमेंशंस विल आल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी. ओके, अब एक कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन का एक पॉइंट है. व्हाट इज कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन? अगर कहीं से भी ट्रीज काटा गया है तो वी विल मेक श्योर दैट द ट्रीज आर इम्प्लांटेड एट सम अदर प्लेस. ओके, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन क्या है? द प्रपोजल टू मेक अप कटिंग 1 मिलियन ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन निकोबार. द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्लांट ट्रीज. अगर एक जगह से ट्रीज काटा गया तो दूसरी जगह कहां करेंगे? हरियाणा में या मध्य प्रदेश में. जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं अगर आप रेन फॉरेस्ट को हटा के कहीं भी और अगर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. ठीक है, इन्वायरमेंटल पर्पस जो है वो बेसिकली इन ऑर्डर टू उस जगह की इकोलॉजी को भी इंपैक्ट करेगी. ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट दिस इज साइंटिफिकली फ्लॉड. अ कॉम्प्लेक्स रेन फॉरेस्ट सिस्टम इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स
कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ 2000 किलोमीटर अवे। ऑब्वियसली अंडमान निकोबार से बहुत दूर है, और हरियाणा एंड मध्य प्रदेश यहाँ पे प्लांटेशन का प्लान कर रहे हैं। तो दिस इज अ फ्लॉड स्ट्रेटेजी। दूसरा क्या है, ट्राइबल राइट्स डिलेमा, पीवीटीजी, जो अभी हमने डिस्कस किया है, निकोबारीज है, ठीक है, शोम्पेन्स है, दीज ट्राइबल विल बी इंपैक्टेड बाय दिस डिसीजन, बिकॉज आपको पता होगा जो इंडिया में बेसिकली मेन लाइन इंडिया ऑल्सो द ट्राइबल्स हैज अ पॉलिसी ऑफ जल, जंगल और जमीन, ठीक है, दे हैव दिस पॉलिसी। अगर इनकी जो लाइफ है वो इनके फॉरेस्ट के लैंड में, और जो फॉरेस्ट है एरिया, ठीक है, और जो इनकी टोटल लाइफस्टाइल है, जो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट इनकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, वो सारी चीज फॉरेस्ट पे बेस्ड है। तो अगर आप फॉरेस्ट काट दोगे तो ट्राइबल्स विल बी इम्पैक्टेड बैडली, ठीक है। तो वही डिबेट को यहाँ पे किया गया है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा अगर हम इस प्रोजेक्ट के गो थ्रू करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियोलॉजिकल रियलिटी। जियोलॉजिकल रियलिटी क्या है, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन योर वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है रिंग ऑफ फायर में लाई करती है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट इज रिंग ऑफ फायर। और ये डिवास्टेड हुआ था 2004 सुनामी में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो इन द फ्यूचर इफ देयर इज अ सुनामी अगेन, सो इट माइट हैव अ वेरी हॉरिबल इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं, हाई इग्नोर्स द क्लाइमेट हिस्ट्री एंड दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये डिजास्टर के लिए एक रेसिपी है दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्रिटिकल अप्रेजल्स है इस आर्टिकल के। सो हियर वी कैन सी दैट हाउ अंडमान निकोबार इज ऑन द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। देखो, दिस इज रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में ये रहा योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड हाउ दीज आर लाइंग इन रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो ये आप डायग्राम अपने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है, जैसे कि चैलेंजर डीप आप पढ़ते होगे, इट्स इन मरियाना ट्रेंच, ठीक है। जावा सुंडा ट्रेंच जो है इट्स नियर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद ये एल्यूटियन ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, बहुत सारे ट्रेंचेस हैं विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन गेट एन रफ आइडिया अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट यू टू नो इज दैट देयर इज अ कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड है, और एक दूसरा है आईसीआरजेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है दैट सीआरजेड इज फॉर मेनलैंड इंडिया, ठीक है, जो अभी हमने बात किया है, राइट फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल देयर इज दिस ग्रेट एरिया विच हैज एक्सेस टू सी, ठीक है। इसके लिए सीआरजेड है। बट जो आपके आइलैंड है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स है, दिस इज योर मेनलैंड इंडिया एंड दिस इज योर अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए यू हैव आईसीआरजेड, दैट इज आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन। सो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, दिस नोटिफिकेशन हैज बीन ब्रॉट बाय गवर्नमेंट इन 2019। 2019 में गवर्नमेंट ने बोला है, ब्रॉट बाय एमओईएफसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट स्पेसिफिकली गवर्न्स द कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, जो हमने देखा है, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सीआरजेड रूल्स एप्लीकेबल टू द मेनलैंड इंडिया में सीआरजेड है, बट आइलैंड में जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वहां पे आईसीआरजेड है, ठीक है। एंड नाउ दिस आईसीआरजेड सेज दैट सबसे पहला जो इनका मोस्टली प्रोटेक्टेड एरिया है इज योर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, ईएसए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन, इंक्लूड्स टू सब कैटेगरीज, दैट इज आईसीआरजेड 1A, आईसीआरजेड 1B। आईसीआरजेड 1A में क्या है, this is by and large related to the protection of things such as corals, mangroves, turtle nesting grounds, protected forests. ICRZ 1B में क्या है, इंटरटाइडल जोन है, एरिया बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। अब हाई टाइड और लो टाइड लाइन क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, इट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन आल्सो। हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन में दोनों में हम कंसीडर करते हैं योर स्प्रिंग टाइड्स। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं वी रीड अबाउट स्प्रिंग टाइड एंड योर नीप टाइड। तो यहाँ पे नीप टाइड से रिलेटेड नहीं है, यू जस्ट हैव टू कंसीडर स्प्रिंग टाइड्स। तो स्प्रिंग टाइड के टाइम में जब जो हाईएस्ट लाइन होती है, आई विल जस्ट शो यू विद अ डायग्राम। फॉर एग्जांपल दिस इज योर, ये सी है और ये स्लोपिंग लैंड है, ठीक है। सो लेट्स से अगर ये है HTL हाई टाइड लाइन और ये है LTL, ये है इंटरटाइडल जोन, ठीक है। सो दिस एरिया इज योर इंटरटाइडल जोन, जो हमने यहाँ बात किया है, एरिया इंटरटाइडल जोन ICRZB यहाँ पे रेगुलेट करती है। हाई टाइड लाइन अगर स्प्रिंग के टाइम में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहां वाटर पहुंच सकती है इन द मेन लाइन इज जो हाई टाइड लाइन, और स्प्रिंग टाइड के टाइम में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो लो टाइड लाइन है, ठीक है। आई होप यू गेट एन आइडिया ऑफ इट।
तो यहां पे क्या है, नो न्यू कंस्ट्रक्शन इज अलाउड एंड दैट इज वाई दिस आर्ग्यूमेंट एंड दिस एनजीटी में यहां केस फाइल किया गया था, दैट यहां पे लिखा हुआ है नो न्यू कंस्ट्रक्शन इज अलाउड एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज लाइक एटॉमिक बॉम्ब प्लांट्स, डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिस है बेसिकली डिफेंस प्रोजेक्ट की तरह हमने इस प्रोजेक्ट को लिया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हैज बीन प्रिटेंडेड एज वी हैव टेकन इट इन द नेम ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट्स एंड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। सो दिस इज इट। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट अनदर मेजर थिंग which is related to this is your very important point that you have to know when you are doing this topic NGT allows Great Nicobar project is related the map work। ठीक है, मैप वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, सो सबसे पहला चीज इन योर एनसीईआरटी आल्सो इट इज रिटन एज 10 डिग्री चैनल। अंडमान इज डिवाइडेड बाय निकोबार बाय 10 डिग्री चैनल, ये सबसे पहला पॉइंट है दैट यू हैव टू नो। सो यू कैन टेक अ मार्केट आल्सो इन योर। दूसरा इज नरकोंडम आइलैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरन आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन यू हैव टू सी डंकन पैसेज। ठीक है, अगर ये 10 डिग्री चैनल है तो एज वी गो इट्स 11 डिग्री चैनल, यहां पे आपको दिखेगा अभी। ठीक है, इट्स 11 डिग्री चैनल बिटवीन लिटिल अंडमान एंड योर पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सेंटिनल आइलैंड है। ठीक है, कार निकोबार प्रोजेक्ट इज देयर, लिटिल निकोबार है यहाँ पे। ठीक है, एंड वेयर इज ग्रेट निकोबार, अगर जो हम अभी बात कर रहे हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज इन ग्रेट निकोबार, सो इट्स ऑलमोस्ट इन द साउदर्न साइड। जो ये ग्रेट निकोबार है ये साउदर्न साइड में है। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं ना ग्रेट निकोबार है तो इट मस्ट बी ऑन द नॉर्दर्न, नहीं, ये सबसे साउथ में है। ठीक है, सो इट्स इन डाउन साउथ। सो मेजरली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए नरकोंडम आइलैंड कौन सा है, बैरन आइलैंड कौन सा है, डंकन पैसेज कौन सा है, 10 डिग्री चैनल क्या है। ठीक है, तो दीज आर मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू नो। एंड अगेन यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का लोकेशन है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान is divided by Port Blair by your 11 degree channel. So these are major things that you need to know whenever you are reading your geography and doing some map work related to it. Okay. One more thing that I want you to take a note of is that the government has actually renamed certain islands in Andaman. ठीक है, for example, your Havelock Island, अगर आप अंडमान निकोबार घूमने जाते हो and you see there's a island called Havelock Island that has been named as स्वराज द्वीप। ठीक है, नील आइलैंड है उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया है। ठीक है, रॉस आइलैंड है हैज बीन नेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। द फोर्थ इज पोर्ट ब्लेयर, इसको श्री विजयपुरम किया है। ठीक है, विच टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हैवलॉक आइलैंड बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्वराज द्वीप कर सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रॉस आइलैंड को रीनेम कर दिया गया है। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल, तो श्री विजयपुरम ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, हमने एक चीज और देखा है दैट व्हाट इज एनजीटी, जिसने रूलिंग दिया वो है क्या एक्चुअली। वो एनजीटी इज एक्चुअली ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इट हैज जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स विद a strength of 10 to 20. It has powers of a civil court and bounded by principle of natural justice. So these are four statements that you can see and it can come in your prelims examination. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए एनजीटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चेयरपर्सन बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इट हैज जुडिशियल एंड ऑब्वियसली टेक्निकल एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे, जो एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह होंगे वो भी यहाँ पे रहते हैं इन दिस बॉडी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, it has powers of a civil court and are guided by principle of natural justice. So this is again a very important point. The next we have to see इस प्रोजेक्ट से जो दो मेजर स्पीसीज है जो इंपैक्ट हो रहे हैं इज योर लेदरबैक टर्टल एंड अनदर इज योर निकोबार मेगापॉड। ठीक है, निकोबार मेगापॉड इज अ endemic bird found in this area. This bird is said to be impacted by this mega project. ठीक है, obviously 1 million trees कट रहे हैं, तो जो species that is staying in this area, those who are living in this area, उनको impact पड़ेगा। Leatherback turtle is also impact। अब ये image इसलिए ऐड किया है, just see the size of this turtle and like आप humans को भी compare कर सकते हो कितना difference है size में। ठीक है, both of these species are vulnerable under the IUCN category. Even this thing can come in your prelims examination. ठीक है, so this is all about the topic. This topic is NGT allows Great Nicobar project. ठीक है, तो अब हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा देख लिया है एंड इसके साथ साथ आई हैव गिवन यू मल्टीपल डायमेंशंस आल्सो दैट व्हाट आर द थिंग्स
that you need to know. ठीक है, whenever you are reading a topic, how you can do a 360-degree survey, or let's say analyze that topic in a 360-degree angle. So will give you a certain idea about how do you go about preparing all the topics that is there in the newspaper. So I'll just do a brief review of what we have done. The very first thing is your NGT allows ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट एंड डिटेल्स पे हम डिस्कस करेंगे। ICRZ रूल्स क्या है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये निकोबार प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया है एनजीटी में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की मैपिंग भी देखेंगे, ठीक है। नेशनल ड्रिवन ट्रिब्यूनल क्या है, ठीक है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनजीटी एक्ट। और जो रिलेटेड स्पीसीज है, सपोज लेदरबैक टर्टल है, वल्नरेबल है अंडर IUCN कैटेगरी। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज अ होल टॉपिक इन टोटो, ठीक है। न्यूज आर्टिकल तो ये है, बट हाउ डू यू कम टू दीज कंक्लूजन, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद आपकी स्पीसीज कौन कौन से इंपैक्टेड है। सो मल्टीपल डायमेंशंस आपको देखने हैं एक टॉपिक से, एक आर्टिकल से। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट। तो आज का जो है, वी हैव ओनली डेल्ट इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक, द रीजन बीइंग दिस, बिकॉज newspaper is a very important source, and this is from 17th February 2026. Thank you so much for watching. All the best.